آداب، میں ہوں محمد رفیع۔ پہلے خاص خبریں۔ گھریلو پروازیں کل سے بھریں گی اڑان، تمام تر انتظامات مکمل۔ بزرگوں، چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین کو سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ وندے بھارت مشن کا دوسرا مرحلہ جاری، تارکین وطن کی ہندوستان واپسی۔ مائیگرنٹ ورکرز کی منتقلی کے لیے 2600 شرمک ٹرینیں، 36 لاکھ ورکرز کی منتقلی کے لیے ریلوے کے انتظامات۔ ریاست میں موسم برسات کے دوران 1 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ اراضی پر کاشت کرنے حکومت کا منصوبہ، متبادل کاشت سے متعلق کسانوں میں شعور بیداری۔ خلیجی ممالک میں آج منائی جا رہی ہے عید الفطر، ہندوستان میں کل ہوگی عید، گھروں میں ہی رہ کر عبادت کرنے علماء اکرام کا مشورہ۔ اور ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے ماہرین کا مشورہ۔ پیش خبریں تفصیل سے۔ گھریلو پروازیں کل سے اڑان بھریں گی۔ اندرون ملک ہوائی جہازوں کی پرواز کا کل سے مرحلے واری طور پر آغاز ہوگا۔ اس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ قومی دارالحکومت دلی کے ہوائی اڈے سے صبح 4:30 بجے پہلی پرواز اڑان بھرے گی۔ ایئرپورٹس پر سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسی دوران فضائی سفر سے متعلق رہنمائانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر شہری ہوا بازی ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ جاریہ سال اگست تک بین الاقوامی پروازیں بھی بحال ہو جائیں گی۔ کل سے گھریلو پروازوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ بین الاقوامی پروازوں کا اگست سے قبل آغاز ہو سکتا ہے۔ If the situation eases or improves and we are in a position to make arrangements, so far Vande Bharat has moved very well. I am confident that domestic flights, when they start on Monday, they will also proceed well. But so my answer to that question is, why August, September? Let us at least in this interaction say that we must have a more ambitious goal. Why not start by June middle or end June or July? ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,31,868 تک پہنچ گئی ہے۔ راحت کی بات یہ ہے کہ ملکوں میں اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 54,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 6,767 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملک میں کووڈ 19 سے متاثر ہونے والے افراد کی صحت یاب ہونے کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ شرح 41.39% تک پہنچ گئی ہے۔ حکومتوں کی جانب سے کورونا متاثرین کے علاج کے لیے تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 52 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں امریکہ کے بعد برازیل اور تیسرے نمبر پر روس ہے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج دلی میں واقع برہما پرکاش آیورویدک ہاسپٹل کا معائنہ کیا۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کے دوران آیورویدک طریقہ علاج کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مذکورہ اسپتال میں کورونا کے متاثرین کا علاج جاری ہے۔ اسپتال کے معائنے کے بعد ڈاکٹر ہرش وردھن نے میڈیا کو یہ بات بتائی۔ کووڈ کے کرائسس کے سمے آیوروید کے مادھیم سے کووڈ کے مریضوں کو علاج ہوتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا اور علاج ہو کر ٹھیک ہو کر یہاں سے جانے کا موقع ملا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ 201 یہاں پر مریض جو ہے کووڈ کے ابھی تک آئے ہیں، جس میں سے 100 کے قریب مریض گھر جا چکے ہیں، ہوم کوارنٹائن میں ہیں۔ وہ 34 مریض جو پازیٹیو تھے وہ نیگیٹو ہونے کے بعد ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ لگ بھگ 45 مریض ابھی یہاں پر ہیں اور کچھ مریض جو ہے وہ ان کا ایک ٹیسٹ نیگیٹو آ چکا ہے، ایسا بتایا گیا ہے۔ آیوروید کی دوائیاں اور ان کے مادھیم سے جتنے مائلڈ اور ماڈریٹ کم سے کم ایسے کیسز ہیں ان کا اپچار۔
वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले के तहत बैरून ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। आज सुबह एयर इंडिया की दूसरी परवाज मस्कत से 132 मुसाफिरीन को लेकर गया एयरपोर्ट पहुंची, जिनमें बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 116 और झारखंड के 16 अफराद सवार थे। मजमूई तौर पर 6 परवाजें खलीजी ममालिक से हिंदुस्तानियों को लेकर गया पहुंचेंगी। ये सिलसिला आइंदा महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले के दौरान ताहाल खलीजी ममालिक में फंसे हुए 7,300 से ज़ायद अफराद को वापस लाया गया है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते 14 परवाज़ों के जरिए 2,500 हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया है। स्पेशल जो प्लेन आया है वो वंदे भारत मिशन के तहत आया है और मस्कट से आया है, ओमान से आया है, जिसमें करीब 132 पैसेंजर्स, जिसमें 116 बिहार के और 16 पैसेंजर्स झारखंड के हैं और जिसमें 2 बच्चे भी हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी सभी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनका यहाँ पर पूरी की जाए और साथ में ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका अल्टरनेटिव डेज पे मेडिकल चेकअप भी होगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी किसी का लक्षण नहीं दिखा है। तकरीबन 2 माह के इंतजार के बाद शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाजें 25 मई से बहाल होने जा रही हैं। NGK किशोर, CEO हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बताया कि 24 मार्च से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाज़ों को बंद कर दिया गया था। तकरीबन 2 माह बाद सेहतमंद माहौल में मुसाफिरीन की सलामती के साथ इनके सफ़र को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट में 24 घंटे साफ सफाई का काम जारी है। मुसाफिरीन में समाजी दूरी और एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी लाई जा रही है। समाजी फासले पर फर्श पर निशानात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बुजुर्गों, छोटे बच्चों और हामिला खवातीन को सफ़र न करने का मशवरा दिया। मुसाफिरीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। मुसाफिरीन को हैदराबाद एयरपोर्ट से सफ़र के लिए बोर्डिंग पास हासिल करने काउंटर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने तौर पर वहाँ मौजूद मशीनों से खुदकार बोर्डिंग पास हासिल कर सकते हैं। సెక్యూరిటీ స్క్రీనింగ్ జరిగే ముందర ఎవ్రీ ప్యాసింజర్। खलीजी ममालिक में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है, जबकि हिंदुस्तान में कल ईद मनाई जाएगी। ईद के मौके पर खलीजी ममालिक में लोगों ने घरों में ही इबादत की। ईद उल फित्र इंतहाई सादगी से मनाई गई। ईद के इज्तिमात मुनक़्क़द नहीं हुए। मजहबी रहनुमाओं और हुक्मरानों ने अवाम से अपील की थी कि वो आलमी वबा कोरोना के पेश नज़र घरों पर ही ईद की नमाज अदा करें। कोरोना की वबा और लॉकडाउन के दरमियान इस मरतबा ईद मनाई गई। हिंदुस्तान भर में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। कल चांद नज़र आने की कोई इत्तला नहीं मिली। रेवत हलाल कमेटी ने ऐलान किया कि शव्वाल का चांद नज़र नहीं आया और 25 मई बरोज़ पीर ईद उल फित्र मनाई जाएगी। जामे मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि वो ईद की नमाज घरों पर ही अदा करें। इनके अलावा दीगर मजहबी रहनुमाओं ने भी कोरोना वायरस के फैलने के पेश नज़र घरों में इबादत करने की अपील की। मुल्क में मौजूदा लॉकडाउन के सबब हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुज्जामिया जामी निज़ामिया ने ख्वाहिश की है कि मुसलमान ईदगाहों या मसाजिद में इज्तिमात मुनक़्क़द न करें, मकानात में ही इनफरादी तौर पर नमाज चाश्त या नमाज शुक्राना का अहतमाम करें। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कोरोना वायरस के पेश नज़र अवाम से ईद के मौके पर घरों में ही रहकर इबादत करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली मरतबा है कि लोग घरों में ही ईद मना रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर जल्द से जल्द इस वबा से नजात की दुआ की। रेलवे की जानिब से आइंदा 10 दिनों तक पूरे मुल्क में मजीद 2600 श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका मकसद 36 लाख फंसे हुए मुसाफिरीन को इनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाना है। ताहाल खुसूसी ट्रेनों के जरिए 45 लाख से ज़्यादा अफराद को इनके आबाई मुकामात को मुंतकिल किया गया। मीडिया से बात करते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि आइंदा 10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलाने के लिए शेड्यूल तैयार किया गया है। जिस रियासत की जानिब से भी ट्रेन चलाने की ख्वाहिश की जाएगी, वहाँ से ट्रेन की खिदमत फराहम करने के लिए महकमा तैयार है। उन्होंने बताया कि अप्रैल ta 22 मई तक रेलवे की जानिब से 9.7 मिलियन टन ग़िज़ाई अशिया मुंतकिल की गईं। स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए जो लागत आती है उसका 85%, 85% भारत सरकार वहन कर रही है और केवल 15% लागत राज्य सरकारें किराए के रूप में वहन कर रही हैं। 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। पता चला कि जो दूसरे
श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज खोलने का निर्णय लिया है। 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं, जिसमें करीब 80,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमने करीब 5000 बेड्स 17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। 1,20,000 पीपी हम बना चुके हैं, करीब 4,000 डेली हम बना पा रहे हैं। मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए, फ्री मील की व्यवस्था करी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों से मुतबादिल काश्त के जरिए मुल्क को एक अच्छा पैगाम देने का मशवरा दिया है। उन्होंने बताया कि ज़राअत को मुनफियत बख्श बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने काश्त के सिलसिले में रियासती वज़रा और ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास तलब किया। इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह व बहबूद के लिए फलाही इक़दाम किए जा रहे हैं और हुकूमत हर तरह से किसानों की मदद कर रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से जामे ज़रई पॉलिसी को खतियत दी गई है। आने वाले मौसम बरसात में जुमला 1,30,00,000 एकड़ अराजी पर काश्त का फैसला किया गया है। इसी के हिस्से के तौर पर 41,76,000 एकड़ अराजी पर धान, 65 लाख एकड़ अराजी पर कपास, 12,51,000 एकड़ अराजी पर तुअर की दाल, 4,08,000 एकड़ अराजी पर सोयाबीन काश्त को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चना, गन्ना और दीगर फसलों की काश्त का भी किसानों को मशवरा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तजवीज़ पर मुंतखबा अवामी नुमाइंदों और रैतु बंधु समितियों की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। मौसम बरसात के लिए मरकज़ की जानिब से तेलंगाना के लिए 22,30,000 टन खाद मुख्तस की गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारिया साल जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में राशन हासिल न करने वालों के लिए रकमी इमदाद को मंजूरी दे दी है। 2,08,000 राशन कार्ड्स गिरंदों को अप्रैल के 2 महीनों में जुमला 3,000 रुपये अदा करने के लिए 62 करोड़ 40 लाख रुपये बैंक खातों में जमा करवाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना बहरान के दौरान रियासती हुकूमत ने सफ़ेद कार्ड रखने के लिए अफराद के लिए एक पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत हर शख्स को फीकस 6 किलो चावल और 1,500 रुपये अदा करने का ऐलान किया गया था। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में राशन के चावल हासिल न करने वालों को ये माली इमदाद नहीं दी गई थी। रियासत गिर सतह पर इस सिलसिले में किए गए मुतालबे के बाद हुकूमत ने जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में राशन हासिल न करने वाले अफराद को भी मदद का फैसला करते हुए रकम जमा करवाई है। तेलंगाना से ताहाल 1,22,000 माइग्रेंट वर्कर्स को 88 खुसूसी ट्रेनों के जरिए मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से उनके आबाई मकामात मुंतकिल किया गया। ये बात चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताई। उन्होंने नामपल्ली स्टेशन से नकल मकानी करने वाले मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन से 6 ट्रेनें मुख्तलिफ मकामात के लिए रवाना हो रही हैं। मजीद 40 ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशनों से 50,000 मजदूरों को ले जा रही हैं। रेलवे की जानिब से मुसाफिरीन के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। तमाम वर्कर्स को 2 वक्त के खाने के साथ 3 लीटर पीने का पानी और फल फराहम किए जा रहे हैं। వలస కార్మిక్ ఈ రోజు వరకు 88 ట్రైన్స్ లో 1.22 lakhs వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా ఒక 40 ట్రైన్స్ పోవడానికి రెడీగా ఉంది. దాంట్లో సుమారు ఒక 50,000 పీపుల్ ఇంకా పోతారు. అంటే అన్ని కలిపి సుమారు 1,70,000 వరకు వలస కార్మిక్ హైదరాబాద్ నుండి పోతారు. దీంట్లో వాళ్ళకి రైల్వే ద్వారా ఫుడ్ ఉంది. అది కాకుండా గవర్నమెంట్ తరఫున కూడా వాళ్ళకి 2 ఫుడ్ ప్యాక్స్, అదేవిధంగా ఈచ్ పర్సన్ కి ఒక 3 లీటర్ వాటర్, తర్వాత కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఇట్లాంటి మాస్క్ అన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు చాలా మీరు చూస్తే ఇప్పుడు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతే ఉన్నారు. దీనికోసం మన డీజీపీ గారు అందరూ ఇక్కడ లోకల్ ఉన్న అందరు ఆఫీసర్స్ వాళ్ళందరూ కష్టపడి చాలా పని చేశారు. సో ఈ రోజు తర్వాత ఒక రకాల 40 ట్రైన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రోజు సుమారు దాని తర్వాత ఎక్కువ అవసరం ఉండదు. సో మీ అందరికీ ఇది చెప్పాలి. మన రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వాములు అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్లుగా ఇప్పటివరకు దాదాపుగా 1.22 lakhs మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ని మనం వేరియస్ స్టేట్స్ కి ట్రైన్స్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది ఆల్రెడీ. ఈరోజు
ఒకే రోజు 40 ట్రైన్స్లో దాదాపుగా ఇంకొక 45,000 మంది దాకా మనం ఒకటే రోజు అందరినీ పంపిస్తూ ఉన్నాం. వారందరికీ కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అధికారులు, సిబ్బంది పూర్తిగా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు, భోజనము, అట్లాగే వసతి, దానికి సంబంధించినటువంటి శానిటేషను, మాస్క్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా అందరూ చాలా సంతోషంగా వెళ్తున్నారు. ఇది ఆపదలో ఉన్న వారికి మనం వీరందరినీ కూడా ఆదుకొని ఒక మంచి డిగ్నిఫైడ్ వాతావరణంలో అందరినీ పంపించడం మా అందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఎంతమంది నమోదు చేస్తున్నారు, ఎంతమంది ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది మొత్తం లేబర్ ఇక్కడ? मरकज की जानिब से नकल मकानी करने वाले मजदूरों के लिए कौमी देही रोजगार स्कीम के तहत 40,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया है, जिससे मेहनत कश तबका काफ़ी खुश है। जिले वरंगल रूरल खानापुर मंडल में महात्मा गांधी देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत यौमिया 9,000 से ज़ायद मजदूर पेशा अफराद काम कर रहे हैं। हैदराबाद, पुणे, सूरत और दीगर मुकामात से वापसी के बाद क्वारंटीन का अमल पूरा करते हुए इन्हें काम का मौका फराहम किया जाएगा। మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించినటువంటి ఉపాధి హామీ పథకంలో మేము ఇక్కడ 4 గ్రూపులు 80 మంది పనిచేస్తున్నారు. దాంట్లో 40 మందికి పైగా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన వారే వలస కూలి వాళ్ళు. సో వాళ్ళకు జాబ్ కార్డ్ లేదు. సో మా సర్పంచ్ గారిని కలిసి మాకు జాబ్ కార్డ్ ఇప్పించి పని చేయగలని కోరితే మాకు వెంబడే స్పందించి జాబ్ కార్డ్ ఇప్పించి ఇక్కడ మేము పనులను గత 3 వారాల నుంచి చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మాకు ప్రతిరోజు కూడా 230 రూపాయలు చొప్పున మాకు కూలి వస్తుంది. నా పేరు గుగుల సరోజన. అనగానే అక్కడ లాక్డౌన్ పడ్డది. లాక్డౌన్ పడగానే అక్కడి నుంచి వచ్చేసినాం. రాగానే మాకు సర్పంచ్ సార్ ఈడ రాగానే జాబ్ కార్డు వచ్చేటట్టు చేసిండు. ప్రభుత్వం వల్ల జాబ్ కార్డు వచ్చేసింది. పని చేస్తున్నాం. నా పేరు భాను నరేష్. లాక్డౌన్ కారణంగా నేను ఇంటికి మా వేపచేరు తండకు రావడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించిన ఉపాధి హామీ పథకం వల్ల మేము సర్పంచ్ గారిని సంప్రదించడం జరిగింది. సర్పంచ్ గారిని సంప్రదించడం వలన మాకు జాబ్ కార్డు అప్లై చేసి మాకు జాబ్ కార్డు వచ్చే విధంగా చేసిన తర్వాత మేము ఇప్పుడు ఉపాధి హామీ పథకం చేస్తున్నాము. మా కుటుంబము ప్లస్ మా తల్లిదండ్రులు అందరం, మా కుటుంబం పాటు మా ఊరిలో ఉన్న ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ఈ అవకాశం కలిగించిన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మేము 100 రోజుల పని గురించి లాక్డౌన్ వలన వలస కూలీలు వేరే ఊరు నుండి మా గ్రామానికి వచ్చారు. 280 మందికి మేము ఉపాధి హామీ పని కల్పించాము. మా ఉపాధి హామీ పని వల్ల మా గ్రామంలో చాలా మంది వలస కూలీలు ఉన్నారు. 100 మంది వరకు. रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि अपने अतराफ अकनाफ के इलाकों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। रियासती वजीर बल्दी नवज़ो नक्श के तारक रामाराव की अपील पर उन्होंने सुबह 10 मिनट के लिए साफ सफाई के काम में हिस्सा लिया। उन्होंने फूलों के गमलों में जमा पानी बहाया और दीगर साफ सफाई के काम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर इतवार की सुबह 10 बजे से 10 मिनट तक के लिए अवामी कायदीन, ओहदेदार और अवाम अपने आसपास के इलाकों को साफ करने पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि कोरोना से निजात के लिए साफ सफाई और सरसब्ज़ और शादाबी इंतहाई ज़रूरी है। తీవ్ర రూపం దాల్చి ఈరోజు ప్రజలందరినీ బలుగొంటున్న సమయంలో మరి కరోనా కట్టడి చేయాలి అంటే పరిశుభ్రంగా ఉండటమే మార్గం. భౌతిక దూరం ఉండాలి, పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. తద్వారా మాత్రమే దీన్ని కట్టడి చేయగలుగుతాం అనేది మరి ప్రధానమైన నినాదం. కాబట్టి అందులో భాగంగా మా కేటీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు పల్లెలన్నీ పరిశుభ్రంగా ఉండాలి, ప్రజలు శుభ్రంగా ఉండాలి. అందులో భాగంగానే నేను ఈ ఇంట్లో మరి కొంత గార్డెనింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే శుభ్రంగా చేయడం జరిగింది. ఇది అందరికీ స్ఫూర్తి కావాలి. ప్రతి ఒక్కరు 10 నిమిషాలు కుటుంబాల కోసం, అంటే ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఇదేదో కేవలం ఆడవాళ్ల పనో లేకపోతే పని వాళ్ల పని అనుకోకుండా మనకు మనం మన వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించినప్పుడు తప్పకుండా సమాజానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. रियासती वजीर इंदिरा करम रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दिलचस्पी के नतीजे में ज़राअत के एक नए बाब का आगाज़ हुआ है। उन्होंने आज निर्मल में मुतबादिल कास्ट से मुताल्लिक़ मुनक़्क़िदा शऊर बेदारी इजलास में शिरकत की।
اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کسانوں سے خواہش کی کہ وہ متبادل کاشت پر عمل آوری کریں۔ ఎన్ని ఎకరాలు ఏ పంట వేసినారో ఎంత దిగుబడి వస్తుందో ఈ ఆధారంతోనే మనం ఎక్కడైతే అవసరాలు ఉన్నాయో అక్కడ పంపడం జరుగుతుంది। ఇదంతా కూడా ఎందుకంటే మార్కెట్లలో రైతులు ధాన్యం పోసి మొక్కలు పోసి 40 రోజులు 50 రోజులు దాన్ని చూసుకుంటూ కూర్చుండి వర్షం పడుతుందేమో, మా వరి ధాన్యం తడిసిపోతుందేమో, మొక్క తడిసిపోతుందేమో, దానికి ఫంగస్ వస్తుంది, ఇది ఎట్లా లారీలు ఈ కరోనా సమయంలో లారీలు దొరకడం కష్టము। అదేవిధంగా అమాలి సంద బీఆర్ వెళ్ళిపోయినారు, అమాలి లేరు, ఒక్కొక్క లారీ పోయి గోడాం దగ్గర 8 రోజులు 9 రోజులు ఉంటుంది। ఇదంతా రైతులు తెలియదు। ఏమైనా సార్ మాకు లారీలు వస్తలేవు సార్ అంటారు। వాళ్ళు ఆ రైతులు ఏం చెప్తారు, మన ప్రజాప్రతినిధులు చెప్తారు, మీ ప్రజాప్రతినిధులు సర్పంచ్ దగ్గరికి మాకు ఫోన్లు చేస్తారు, రైతు సంబంధించిన సంఘం కలెక్టర్ల దగ్గర నుంచి మా అందరికీ సార్ లారీలు వస్తలేవు, మరి ఏం చేయాలి చెప్పుది। ఆ డ్రైవర్కి భోజనం లేదు, ఎక్కడ 8 రోజులు ఉంటే మొత్తం డాబాలు ఉండడానికి బంద్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఫుడ్ తెచ్చుకుంటామంటే లేదు, మరి 8 రోజులు ఆ డ్రైవర్ ఎట్లా ఉంటాడు। लॉकडाउन के पेश नज़र सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों के बैंक खातों में हुकूमत की जानिब से रकम जमा करवाने का अमल जारी है। ज़िले भद्रातरी कुत्तगुड़म में 52,345 राशन कार्ड गिरंदों के बैंक खाते नहीं हैं। इन्हें पोस्ट ऑफिस के जरिए फीकस 1500 रुपये रकम की अदा की जा रही है। हुकूमत की इस इमदाद पर मुस्तहिक़ीन ने हुकूमत से ज़रा तशक्कुर किया। बीजेपी क़ायद आत्माराम नायक ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ में हुकूमत की जानिब से कबायलियों को दी गई ज़राई अराज़ी पर महकमे जंगलात के अहदेदारों की जानिब से कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि ज़िले के 400 किसानों को क़ानून हक़ जंगलात 206 के तहत हुकूमत की जानिब से अराज़ी फराहम की गई थी। उन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों से अपना रवैया तब्दील करने को कहा। बसूरत दीगर किसानों के साथ मिलकर एहतजाज करने का उन्होंने इंतबा दिया। ఈరోజు ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గంలోని రెబ్బెన మండలంలోని ఖైరుగూడ గ్రామ పంచాయతీ మరియు పరిసరాలు నక్కలగూడ కావచ్చు, తర్వాత సోనాపూర్ విలేజెస్లో గత 50-60 సంవత్సరాల నుంచి రైతులు పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న పరిస్థితి। 2026లో రాజశేఖర్ రెడ్డి గిరిజనులకు పట్టా ఇవ్వడం జరిగింది। అయితే ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టా ఇప్పుడు చల్లవని చెప్పేసి అధికారులు ఇప్పుడు వారు ఈ ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టా మీద डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। महबूबनगर रेलवे स्टेशन से आज रात श्रमिक ट्रेन रवाना होगी, जिसमें ओडिशा से तलाश माश के लिए नारायणपेट और महबूबनगर अजला आने वाले मजदूर रवाना होंगे। नारायणपेट जिले से तकरीबन 1600 और जिले महबूबनगर और नागर कर्नूल के भी माइग्रेंट वर्कर्स इस ट्रेन के जरिए रवाना होंगे। ये ट्रेन रास्त उड़ीसा के नौपाड़ जिला पहुंचेगी। उड़ीसा जाने वाले वर्कर्स की महकमे सेहत की जानिब से थर्मल स्क्रीन की गई। इन्हें मास्क और सैनिटाइजर्स हवाले किए गए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए समाजी फासला बरकरार रखना ज़रूरी है। इस सिलसिले में मुतासरीन के साथ इम्तियाज़ाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस वायरस का मुकाबला करने वाले तमाम अफराद का एहतराम ज़रूरी है। पेश है एक खुसूसी रिपोर्ट। कोविड-19 वायरस के ताल्लुक से अवाम में पाए जाने वाले गैर ज़रूरी खौफ को दूर करने की ज़रूरत है। मरकज़ी वजारत सेहत के मुताबिक डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमले के ताल्लुक से इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया जाए। वो तमाम अपनी जान को जोखम में डालकर तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम इस वक्त हिंदुस्तान की हिफाजत का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा फरीज़ा है कि हम इनके साथ ताउन करें। कोरोना वायरस के खौफ से हम घरों में मुकीम हैं, जबकि ये तमाम वायरस से मुतासरीन का इलाज के ज़रिए इनकी खिदमत कर रहे हैं। ये तमाम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में सफ़े अव्वल में खड़े हुए सिपाही हैं। इनके साथ तशद्दुद, इम्तियाज़ाना रवैया इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमले की हौसला अफजाई की जाए। इनके ताल्लुक से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करें। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें इनके साथ तशद्दुद करने वाले और इनके साथ इम्तियाज़ाना रवैया इख्तियार करने की मज़म्मत करनी चाहिए।
कोरोना वायरस से मुतासर अफराद से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से 80% अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मर्ज के खात्मे के लिए वायरस से मुकाबला कीजिए, मरीज से नहीं। कोई भी शख्स कोविड-19 से मुतासर हो सकता है। ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलता है। इसके लिए किसी को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। क्वारंटाइन में रहने वाले अफराद और इनके अफराद ख़ानदान के साथ हमदर्दी का मुजाहिरा करना चाहिए। कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद की हौसला अफजाई की जाए और सेहतयाब होने वाले अफराद की तशहीर की जाए। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक अगर किसी को समाजी या नफ्सियाती मदद की ज़रूरत हो तो वो हेल्पलाइन नंबर 08046611007 पर रब्ता कायम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की अपने अल्फाज में तारीफ करते हुए कहा, कोई रोड पर ना निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। आइंदा 3 दिनों के दौरान जनूबी और शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के बाज़ इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचिर्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, पेदपल्ली, करीमनगर, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुग, महबूबाबाद, भद्रादरी, कुत्तगुड़म, वरंगल अर्बन, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और मंचिर्याल में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। अलावाजी ये भी इंतबाह दिया गया है कि तेलंगाना में 26 से 28 मई के दौरान बाज़ मकामात पर 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रियासत के कई अजला में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से ही गर्मी की शदीद लहर देखी जा रही है। कल मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर में आज़म तरीन दर्जा हरारत 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ज़िले जगतियाल के राजनपल्ली में आज़म तरीन दर्जा हरारत 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में भी आज़म तरीन दर्जा हरारत 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में खबरों को खुलासा एक बार फिर। घरेलू परवाजें कल से भरेंगी उड़ान, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। बुजुर्गों, छोटे बच्चों और हामिला खवातीन को सफर न करने का मशवरा। वंदे भारत मिशन का दूसरा मरहला जारी, तारिकीन वतन की हिंदुस्तान वापसी। माइग्रेंट वर्कर्स की मुंतकिली के लिए 2600 श्रमिक ट्रेनें, 36 लाख वर्कर्स की मुंतकिली के लिए रेलवे के इंतजामात। रियासत में मौसम बरसात के दौरान 1 करोड़ 30 लाख एकड़ अराजी पर काश्त करने हुकूमत का मंसूबा, मुतबादिल काश्त से मुतालिक किसानों में शऊर बेदारी। खलीजी ममालिक में आज मनाई जा रही है ईद उल फित्र। हिंदुस्तान में कल होगी ईद, घरों में ही रहकर इबादत करने उलमा इकराम का मशवरा। और मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने माहिरीन का मशवरा।